یہ ایک ایتھیسٹ چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے۔ اسلام چھوڑنے کی کہانیاں، اس سیریز میں پرانے انٹرویوز کو چھوٹا کر کے لانے کی کوشش کروں گا تاکہ امپورٹنٹ پارٹس کو کم ٹائم میں کور کیا جا سکے۔ یہ چینل کسی بھی ریلیجن یا سنگٹھن کی مدد سے نہیں چلتا ہے۔ اس نیک مہم میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اس چینل کی ہر ویڈیو پر پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے اور یوٹیوب سے کوئی خاص ارننگ نہیں ہوتی۔ اس چینل اور مشن کو بنائے رکھنے کے لیے آپ کی ریگولر منتھلی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس مشن کے ایک سپاہی بنیے اور گرو محسوس کریے صدی کے سب سے بڑے مشن کے سپورٹر ہونے پر۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ اس شو میں آئیں۔ تھینک یو۔ اور ہمیشہ کی طرح ہماری کامنا ہے کہ آپ کی کہانی سن کر جو باقی مسلم لڑکیاں ہیں ان کی زندگی میں بھی کچھ بدلاؤ آئے۔ آئی ہوپ سو، وہ بھی سامنے آ جائے، جو ابھی چھپے ہوئے ہیں وہ بھی کوشش کریں گے باہر آ کے اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں، تو آئی ہوپ سو کہ وہ بھی باہر آ جائے۔ تو چلیے اپنے سوالوں کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ہمیں اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے پریوار کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی کس طرح کی فیملی ہے اور بیسکلی آپ کتنا وقت بیت چکا ہے ملحد ہوئے ہوئے؟ اوکے سر، میں نا ایک میری ماڈریٹ مسلم فیملی سے میں بلانگ کرتی ہوں، لیکن میرے دونوں جو پیرنٹس ہیں وہ ورکنگ ہیں، تو وہ مطلب یہ زیادہ مذہب کو لے کے نا اسٹرکٹ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے کبھی نماز پڑھ لیا، مطلب میرے گھر میں ایسے نہیں ہے کہ 5 ٹائمز نماز ہر کوئی پڑھتا ہے، جس کے پاس جتنا ٹائم ہوگا اس حساب سے، کبھی فرائیڈے یا کبھی کسی کوئی اوکیزن ہو تو ویسے ہیں کہ فالو تو کرتے ہیں، لیکن ویسے نہیں جیسے کٹر مسلم لوگ کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ایک پلس پوائنٹ ہے میرے لیے کہ اتنی زیادہ مذہب کو لے کے نا لوگ، میرے گھر میں اتنا اسٹرکٹنیس نہیں تھی۔ تو یہ میری فیملی ہے اور چھوٹی سی فیملی ہے، میرے فیملی میں 5 ممبرس ہیں، پیرنٹس اور 3 سبلنگس ہیں، ہم بس اتنا ہی ہماری فیملی ہے۔ تو اس کے آگے آپ کچھ اور پوچھنا ہے تو جی چلیے اب آپ نا ذرا اپنی سٹوری بتائیں تھوڑا سٹارٹنگ سے کہ کیا کچھ ایسا بیتا آپ کے ساتھ میں، کیا کچھ ہوا کہ آپ نے مطلب اس مذہب کو چھوڑا جس میں آپ پیدا ہوئی تھی، تو وہ تھوڑا سا آپ ہمیں سٹوری بتائیے اپنی بچپن سے لے کے ابھی تک کی۔ اوکے سر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری فیملی میں نا مذہب کو لے کے زیادہ اتنا کوئی فوکس نہیں کرتا اور زیادہ مانتے ہیں، لیکن بیسک جو چیزیں ہیں تو اتنا زیادہ ہر ٹائم اسلام یا مذہب وہ نہیں کرتے ہیں، تو تھوڑا سا اوپن ہے اس چیز میں لے کے، اور یہ ڈسکرمنیشن بھی نہیں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ یہ رولز اور ریگولیشن برابر ہے، ایکویلٹی ہم کہہ سکتے ہیں۔ میرے گھر میں ایسا ماحول ہے، تو میں نے سر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اسلام مطلب بچپن میں جب ہم مدرسے جاتے ہیں تو سب کو تو وہ ایک لائف کا ایک وہ ہے نا کہ آپ مسلم فیملی میں بلانگ کرتے پیدا ہو گئے تو آپ کو مدرسے بھی جانا پڑتا ہے۔ تو جب میں نے مدرسہ جوائن کیا تو اسکول میں بھی جاتی تھی، بٹ ساتھ میں یہ 8-10 سال کی ایج کی میں بات کر رہی ہوں، تو میں نے مدرسہ بھی جوائن کیا۔ تو سر وہاں پہ پرابلم کیا تھا کہ میں کبھی اس کو کنٹینیو نہیں کر پائی، میرے لیے مجھے لگتا تھا اتنا ٹف، عربک پڑھنا اور یاد کرنا ٹف لگتا تھا ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹیجز کی، اگر ہم کمپیئر کریں انگلش یا باقی جو بھی سبجیکٹس ہیں تو اس سے مجھے نا وہ ٹف لگتا تھا کہ یاد کرنا پڑھنا۔ تو اچھی خاصی تو ڈانٹ مطلب مار بھی پڑتی تھی، ڈانٹ بھی پڑتی تھی مولوی سے، تو شاید میرے کچھ آواز ڈبل آ رہے ہیں میری ہیڈ فون شاید، تو وہ مطلب اس طرف سے نا کبھی میں زیادہ اس کی طرف نا مطلب گھر والوں سے بھی کوئی پریشر بھی نہیں تھا کہ تمہیں ہر ٹائم مدرسے میں جانا ہے یا اس طرح کا کچھ سین نہیں تھا۔ تو کیونکہ اب اگر آپ کے پیرنٹس ورکنگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو وہ مذہب کو اتنا زیادہ فرسٹ پریورٹی نہیں ہوتا ان کے فیملی میں، تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی تھا۔ تو تھوڑا مطلب میں کبھی قرآن کو پڑھ ہی نہیں پائی ہوں، بچپن کی بات کروں میں کبھی قرآن کو پڑھ ہی نہیں پائی، ایک 2 چیپٹر میں نے پڑھ لیے، اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا، پھر 6-8 مہینے کے بعد پھر سے یاد آ گیا، پھر سے میں نے جوائن کیا، اور تب تک میں پورا نہ وہ بھول گئی تھی، تو وہ مجھے نہیں پتا کہ یاد کیوں نہیں ہوتا تھا، وہ کیا پرابلم تھا، تو وہ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ تو سر میں وہ کہہ رہی تھی کہ کبھی میں نا قرآن کو اچھے سے نہیں پڑھ پائی، تو مدرسے میں جانا آنا وہی رہا کہ آنا جانا چھوڑنا، وہ ڈانٹ کھاتی رہی، اور اس کے بعد جب میں نے اس کے ساتھ میں ایک کلاس بڑھنے لگا کہ میں نے 7ویں 8ویں 9ویں وہ وہاں تک میں پہنچ گئی، تو کمپٹیشن اور زیادہ اسکولز میں بڑھنے لگا، تو میں کبھی مذہب یہ اسلام کو زیادہ میں پڑھ ہی نہیں پائی۔ تو گھر والوں کا بھی یہ تھا، فوکس تھا کہ اچھے مارکس آ جائے اسکولز میں،
अच्छे से आप पास कर लो, तो उनका भी वही था कि आगे जाके फिर अपना करियर भी देखना है, तो कभी उस चीज को लेके ज्यादा फोर्स नहीं किया, ठीक है। तो मैंने एक तरफ से कह सकती हूँ कि मैंने कुरान ना बचपन में ही पढ़ना छोड़ दिया, कि आप कितना मतलब दो दो तीन तीन चीजें एक साथ पढ़नी, तो मैंने बचपन में ही कुरान पढ़ना छोड़ दिया। बट ये था कि लाइक फॉलोअर तो मैं थी, मतलब मजहब पे विश्वास भी था। आप जैसे जो अच्छे अच्छे चीजें बताते हैं ना इस्लाम के बारे में, इस्लाम ऐसा है, इतना खूबसूरत है, अमन का वो मजहब है, इस तरह की, तो मैं एक तरफ से ना ब्लाइंड फॉलोअर। तो वैसे होते होते लाइक मैंने 12th तक में ऐसे ही, मेरे 12th तक जब मैंने 12th पास किया, तो उसके बाद मैं अपने शहर को छोड़ के ना मुझे दूसरे शहर मैंने स्टडीज के लिए आ गई, कि ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे एडमिशन एक अच्छी कॉलेज में मिल गया तो मैं अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में आ गई पढ़ाई के लिए। तो कॉलेज भी जाती रही और पहुंचने साथ साथ मेरे फ्रेंड्स बनने लगे, मुस्लिम्स भी थे, नॉन मुस्लिम्स भी थे, तो दोनों तरह के। तो सर मेरे जो जितने बैचमेट्स थे ना, सबका क्वेश्चन होता था कि लाइक तुम्हें इतने दूर से घर वालों ने परमिशन कैसे दिया आने का, कि यूनिवर्सिटीज तो वहां पे भी हैं, तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या है, और लाइक तुम घर वालों को तुमने कन्विंस कैसे किया। तो ये तो इजी था, मेरी मर्जी थी कि मुझे एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। घर वालों ने भी थोड़ा रिसर्च उसके बारे में थोड़ा इधर जानकारी ली, और मुझे इजीली मतलब स्मूथ ट्रांजैक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत आ गई, इजीली मेरा हो गया, तो मुझे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उनका ना मुझे वो क्वेश्चन हर मतलब सारे इस्लाम में ये अलाउ नहीं है लड़कियों के साथ, तो तुम्हें इतना दूर आने क्यों दिया। तो मैं कुछ टाइम के बाद तो सारे भूल जाते, तो मैं भी भूल गई हूँ, आगे बढ़ने लगी। तो सर उसके बाद से एक बार इंसिडेंट मेरे साथ हो गया। तो मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड मतलब मेरे जो लाइक वो इंस्टीट्यूट में बन गया, तो उसने मेरे से ऐसे ही पूछा कि मुझे तुमसे लाइक कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो अगर तुम कंफर्टेबल हो तुम आंसर दे सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब फ्रेंड है तो ठीक है, कोई नहीं, काफी टाइम से एक दो साल से जानती थी, तो मैंने कहा ठीक है पूछो जो भी है। तो उसने मुझे कहा कि लाइक पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे माँ बाप ने ना तुम्हें इतना दूर आने कैसे दिया, ये अकेले रहना या सब कुछ करना, माहौल ठीक नहीं है, यहाँ पे अच्छे बुरे लोग आसपास में तुम्हारे हैं जो मतलब इस्लाम में ये अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा यार ऐसा, मतलब मैंने कहा इसमें गलत क्या है, ठीक है मैं कोई चोरी नहीं कर रही, कुछ तो गलत तो नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। तो उसके बाद बोला कि उसके बाद आगे का क्या प्लान है। मैंने कहा ठीक, अगर जॉब मिल गई तो देन आई कैन कंटिन्यू हियर, तो मुझे कोई और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे करते करते ना, तो फिर वो मुझे बोलने लगा कि मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा जितना अभी तक का जितना खर्चा हो गया, लाइक तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारे जो कोर्स में या तुम्हारे आने सब कुछ जो खर्चा है, तो मुझे बता दो तुम्हें कितने पैसे, लाइक अभी तक का कितना तुम्हारा कितने पैसे लग गए, तो मैं वो तुमको देके तुम घर चली जाना वापस। तो ये तुम ये जो कर रही हो ना ये ठीक नहीं है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा यार वो लड़का ये कह रहा था आपसे कि आपका अभी तक जितना खर्चा हुआ है वो आपको वो पे कर देगा और आप वापस घर चली जाएं, क्योंकि इस्लाम इस तरह से इजाजत नहीं देता। ओके, हाँ राइट। तो मैंने कहा कि अब मैंने कहा कि मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई गलत तो नहीं कर रही हूँ ना, पढ़ाई कर रही हूँ, आगे मेरा फ्यूचर का सपना है कि मैं कोई अच्छी जॉब करूँ और अपना करियर मेरा सेट हो जाए, बस इतना ही है। इससे ज्यादा तो ऐसा मतलब मेरा उससे अच्छा खासा ना लाइक बहस भी होने लगी, झगड़ा हो गया एक तरफ से। तो मैंने फिर वहाँ उनसे ना दूरी बनाना स्टार्ट किया, और जो आसपास में और भी मुस्लिम्स थे, लाइक मैंने कभी सोशल मीडिया पे अपना कोई पिक्चर मैंने डाल दिया, ठीक है, तो वो मतलब उनका कमेंट आता था इस्लाम में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था यार हर बात को ना इस्लाम इतना क्यों लेके आते थे। तो मैं इंसान की ना हद मत एक होते ना लिमिट होते हैं कुछ सहने की। तो मैंने उनसे दूरियां सबसे जो मुझे लगता था ना इस टाइप का इंसान है, तो मैंने दूरियां बनाना स्टार्ट किया सब लोगों से जिनसे मतलब मुझे ऐसे कमेंट आने लगे। तो मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट सारे डीएक्टिवेट कर दिया, अपना नंबर चेंज कर दिया, ताकि मैं उनके टच में ही ना रहूं, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने एक छोटी सी जॉब मिल गई, तो मैं अपने जॉब में मैंने जॉब ज्वाइन किया कुछ टाइम के बाद। तो उसके बाद से लाइक मेरे कुछ मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं लाइक एथिस्ट हूं ना, तो उसके पीछे मेरे जितने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स स्पेशली हिंदूज हैं उनका बहुत हाथ है। मैं आपको बताऊं कैसे। मैं आपको पहले बताया कि मैंने कुरान ज्यादा कभी पढ़ा ही नहीं, बचपन में ही छोड़ दिया। कुछ चीजें जो हम रट्टा मारते हैं वो भी मैंने दिमाग में है, अभी मैं भूल भी नहीं रही हूँ, अभी वैसे ही हैं कुछ चीजें। तो वो मैंने
ऐसे ही मेरे पास है। तो मेरे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं ना, तो उन्हें लाइक मेरा एक फ्रेंड था, तो उनको तो पता था कि मुझे देख के किसी को लगता ही नहीं था कि मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ या क्या हो। लाइक जैसे होता ना कि जैसा देश वैसा बेस, वैसे आपका रहन सहन सब कुछ ऐसा ही था। तो मैं मेरा ज्यादा कंफर्ट लेवल अगर मैं कंपेयर करती थी ना कि मैं मुस्लिम से ना, मुझे उनसे थोड़ा सा ना डर भी लगता था कि उनकी सोच और मेरी सोच अलग है। मैं वो कह रही थी कि लाइक मेरा मजहब छोड़ने में ना नॉन मुस्लिम्स का हाथ बहुत ज्यादा है। तो मेरा एक लाइक मेरे फ्रेंड्स बनने लगे जॉब पे। तो अब एक है कि थोड़ा कंफर्ट भी आता है, आप चीज़ों को शेयर करना स्टार्ट कर देते हो, आप चाहते हो कि जो अपोजिट कल्चर है उसके बारे में भी पता हमें चले, तो हम ऐसे अपने व्यूज ना शेयर किया करते थे। तो मेरे एक फ्रेंड ने एक ने ऐसे ही बोला कि लाइक मुस्लिम्स में ना 4 शादियां क्यों करते हैं लोग। तो मैंने उसे कहा कि देखो, मेरे घर में तो कभी किसी ने दूसरी शादी की नहीं है, और मेरे आसपास में जितने लोगों को मैं जानती हूँ, कभी किसी की मैंने 2 बीवी देखी नहीं है। अब ये क्यों है उसके बारे में मुझे नहीं पता, ये मेरे समझ से भी बाहर है, और मैंने कभी किसी से पूछा भी नहीं है उसके बारे में कि ये इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो एक हो गया थोड़ा सा मैं मेरा। आपको यहाँ पर रोकूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा और मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन दे देता हूँ इस चीज पे। हाँ, एक्चुअली मेरी भी जब बहुत सारे लोगों से डिबेट होती है, तो हाँ, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जैसे कि ये 3 शादी वाली बात हो, 4 शादी वाली बात हो गई, हाँ, तो ये ज्यादातर भाई उनकी फैमिली में नहीं है, किसी के यहाँ पे उन्होंने तो दूर दूर तक ऐसा नहीं देखा। ऐसे मैंने बहुत सुने हैं, बहुत लोगों ने मुझसे डिबेट में इस तरह की बातें कही हैं। हाँ, लेकिन देखिए, प्रॉब्लम तब आती है, ऐसा यहां पर इसलिए नहीं होता क्योंकि जिस समाज में हम यहाँ पर इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में हम बाकी लोगों के साथ में रहते हैं, बाकी कल्चर के साथ में रहते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली उन चीजों को अडॉप्ट करते हैं और हमें पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। जो जो गलत होते हैं वो हम अपने आप ही उन चीजों को छोड़ देते हैं। ठीक है। हाँ, अच्छा, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें क्यों इसका विरोध करना चाहिए। विरोध इसलिए करना चाहिए क्योंकि सिर्फ हम अपने बारे में नहीं सोच सकते, सिर्फ अपने कंट्री के लिए नहीं सोच सकते। अगर हम पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर ये सारे जुल्म होते हैं, जितने भी हम देखते हैं, जैसे कि ये 4 शादियां हो गई, या फिर ये 3 तलाक की बात हो गई, या फिर ये बीवी को पीटने वाली बात हो गई। ये वो बातें हैं जो होती हैं और महिलाओं को बहुत ज्यादा झेलनी पड़ती हैं। हाँ, सर ये वही तो रीजन है मैं कह रही हूँ ना, जी। मुझे पता ही नहीं था तब तक कि इस्लाम इतना हम्म, खूबसूरत है, उसमें इतने अच्छे चीज़ें हैं। मुझे पता जी। ही नहीं थी, मैं उनको वही बता रही थी जो लाइक मैंने देखा है या सुना है, जो आस-पास में। पहले तो आप अपनी फैमिली पे ही जाते हो ना कि अपनी फैमिली में क्या होता है, ये चीज़ें वो अप्लाई करते हैं अपने आप पे या नहीं। तो मैंने उसे ऐसे बोल दिया कि मुझे नहीं पता। और दूसरी बार क्वेश्चन था कि लाइक ये ट्रिपल तलाक की, दूसरे एक फ्रेंड ने मुझे पूछा कि ट्रिपल तलाक के तुम्हारा क्या टेक है। तब वो लाइक कुछ ना ट्रिपल तलाक के बारे में बात हो रही थी, वो तब तक हटा नहीं था, वैसे बात हो रही। तो मैंने उससे पूछे पहले मुझे ये बताओ ट्रिपल तलाक होता क्या है, तब तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती हूँ ना, जब मुझे पता चलेगा कि हम्म, ट्रिपल तलाक है क्या। तो वो ना हंसने लगा कि तुम्हें पता हम्म, ही नहीं है, मुस्लिम होने के बावजूद भी तुम्हें इस चीज का नहीं पता। तो फिर मुझे वो समझाने लगा कि ऐसा 3 बार तलाक बोलने से लाइक रिश्ता खत्म होता है। मैंने कहा छी, ये कहाँ पे हम्म, है। तो वो कह रहे, उसने कहा कि ये तो आपके कुरान में है, अब तुम्हें नहीं पता तो वो तुम्हारी गलती है, लेकिन है तो लाइक मेरा ऐसा ना, ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा, जिनका मेरे जी। पास ना आंसर ही नहीं होता था कि मैं डिफेंड करूं तो कैसे करूं। तो उसके बाद एक तरफ एक मतलब मुझे थोड़ा-सा ना वो लगता था कि मुझे क्यों नहीं पता, लाइक मैं डिफेंड अगर इस्लाम को करूँ तो कैसे करूँ, ये मुझे पता होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने सोचा है ठीक है, मतलब अरबिक तो मुझे पढ़ना नहीं आता है, वो ठीक है मुझे नहीं आता, एटलीस्ट ट्रांसलेशन तो मैं पढ़ सकती हूँ ना। आप अरबिक अरबिक में पढ़ो या किसी और लैंग्वेज में पढ़ो, आपको तो मतलब है कि कुरान में क्या लिखा है, एटलीस्ट वो तो मैं कर सकती हूँ। तो सर मैंने ना कुरान पढ़ना स्टार्ट किया, ट्रांसलेशन नॉट अरेबिक। तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ पे तो अलग-अलग चीज़ें सामने आने लगी कि ये मतलब अजीब-अजीब से चीज़ें मेरे साथ मैंने देखे हैं। तो हाँ, एक और चीज़ ये मतलब एक और दोस्त ने मुझे मुझे ना एक जहाँ से मेरा ना थोड़ा दिमाग खुलने लगा। तो एक बार मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि ये ना मतलब जिहाद क्या होता है? जितने टेररिस्ट्स हैं, जितने टेररिस्ट अटैक होते हैं दुनिया में, तो मोस्ट केसेस में ना मुस्लिम ही क्यों उसके पीछे होते हैं। तो मैंने कहा यार ये सच तो बात है,
ऐसे मना तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके वो क्यों है वो मुझे नहीं पता। तो वो कह रहे कि मतलब जिहाद क्या होता है? मैंने कहा जिहाद तो जो हमने सीखा है कि अपने बुराइयों से लड़ना, उसको जिहाद कहते अपने अंदर की बुराइयों से हैं, लड़ना। अपने अंदर की बुराई से लड़ना। तो मैंने इतना ही सुना था, तो मैंने वही आंसर चिपका दिया उनको भी। तो बट ये एक में दिमाग ना खुलने लगा कि ये चीजें अगर सच हैं कहीं पे भी, तो एटलीस्ट मुझे जानना चाहिए। ठीक है, तो मेरी ये था कि अगर मुझे कोई चीज़ पता नहीं होता तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा-सा ना रिसर्च कर लूँ, जितना मेरे से होगा। तो मैं रिसर्च बिलीव करती हूँ रिसर्च पे, कि हाँ, थोड़ा-सा पढूँ उसके बारे में। तो सर मैं आपको बताऊँ कि लाइक मेरा जो टर्निंग पॉइंट है ना, तो मैंने इस्लाम छोड़ना मैंने कहाँ से किया। एक बार 2 लोगों के बीच में ना कहीं पे झगड़ा हो रहा था, एक मुस्लिम था, एक नॉन मुस्लिम। तो जो नॉन मुस्लिम है, उसने वो मुस्लिम को ऐसे ताना दे रहा था कि लाइक तुम ऐसे बंदे को फॉलो करते हो जिसने 6 साल की लड़की को तक नहीं छोड़ा, आयशा के बारे में बताओ। वो एक तरफ से ना गाली की तरह यूज करने लगा वो चीज। तो मैं वहां पे थी, तो मैं देख रही थी झगड़ा। तो मतलब मैं उनको जानती थी, तो मैं देख रही थी और कुछ कर भी नहीं सकती। तो मुझे लगा कि ये आयशा तो मोहम्मद की वाइफ है, इसके बारे में ये इतना गंदा कैसे कह रहा है? इतना तो लाइक जितना हमने सुना है तो अच्छी चीजें हैं कि उनके, वो तो सबसे उसकी प्यारी वाइफ थी, सबसे ज्यादा प्यार तो आयशा से करता था। तो ये सीन क्या है? इसमें सच्चाई कुछ है या जस्ट झगड़ा जीतने के लिए जो मेरा ये दूसरा वाला दोस्त है ये इसलिए वैसा कर रहा है? तो सर मैंने थोड़ा-सा, मैं कुरान पढ़ ही रही थी, तो मैंने थोड़ा और जानने की कोशिश की कि आयशा और मोहम्मद का क्या चक्कर है। तो वहाँ पे जब मैंने देखा, तो वहाँ पे तो इस तरह के तो मुझे आयतें मिल गई बुखारी में, जहाँ वो कह रहा है कि 6 साल में शादी कर ली और 9 साल में उन्होंने मैरिज कंज़्यूम की है। तो मुझे लगा शायद वेबसाइट गलत है। ये जहाँ से मैं रिसर्च कर रही हूँ, ये वेबसाइट गलत है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना तो जो मतलब हमारी मोहम्मद की इमेज तो अलग है, ये यहाँ पे कुछ और कह रहा है। मुझे लगा शायद किसी नॉन मुस्लिम ने ऐसे कुछ अफ़वाह फैला दी मोहम्मद के बारे में। तो मैंने सर उसके बाद क्या किया, मैंने कहा ठीक है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो हमारे जो मौलवी हैं, जैसे मैं ज़ाकिर नाइक को फ़ॉलो करती थी, तो मैं देखती हूँ कि सच्चाई है भी या जस्ट ये लोगों ने मतलब इंटरनेट पे अब 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो जब मैंने ज़ाकिर नाइक को सुनना स्टार्ट किया, स्पेशली वो टॉपिक आयशा और मोहम्मद की मैरिज के बारे में, तो वहाँ पे तो वो डिफेंड करने लगा। तो ये 6 साल वो कह रहा था कि उस टाइम पे तो ऐसे ही हो रहा था, तो किसी को उस टाइम पे ऑब्जेक्शन ही नहीं थी, उस टाइम पे ये कल्चर ही ऐसा था। तो लाइक मुझे लगा कि ये रेप को मेरे सामने तो ये मैरिज नहीं है ना, 6 साल की बच्ची और 50 प्लस बंदे के बीच में ऐसा, वो तो मैरिज नहीं है, वो तो रेप है, वो चाइल्ड रेप है। तो मैं कभी उस चीज को ना लाइक एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती एज ए ह्यूमन बीइंग। मैं 6 साल की बच्ची, अगर हमें कहीं रोड पे 6 साल की बच्ची दिखती है तो हमें तो प्यार आता है ना। वो इतनी फूल से बच्ची के साथ कोई 50 प्लस बंदा कैसे कर सकता है? तो मैं घर में ही थी और मैं ना सीधे मैं पागलों वाली हरकतें करने लगी। जितनी मुझे गालियाँ आती थी ना, तो मैंने देखा नहीं, मेरा फादर सामने है, मम्मी सामने है, क्या है, मैं सीधा मोहम्मद को गाली देने लगी। ये कैसा हमारा आइडल है जिसने एक बच्चे को तक नहीं छोड़ा? तो यहाँ से मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे कुरान फॉलो करके मुझे जन्नत मिलेंगी, ये सारे घटिया चीजें फॉलो करके, इससे तो अच्छा है मुझे जहन्नम में जाना मंजूर है। चाहे आग में जला दो, चाहे तेल में जला दो, मुझे मंजूर है। बट मैं ऐसे किसी इंसान को प्रॉफिट को फॉलो कर ही नहीं सकती जिसकी इतनी घटिया सोच कि इतनी बीवियां होने के बावजूद भी या किसी और से वो शादी कर सकता था 6 साल की बच्ची के साथ। कैसे सिक मेंटलिटी उस चीज के लिए चाहिए कि आप उसको एक्सेप्ट कर पाओ और जस्टिफाई क्यों ही करना? रेप मतलब रेप ही है। अगर हमारे यहाँ पे इंडिया में कोई किसी के साथ, बच्ची के साथ ऐसा करता है, हम तो उस इंसान को हम अपने समाज से दूर रख के जेल में डालते हैं ना। तो ये तो जस्टिफाई करने की कोई चीज है ही नहीं कि हम उस चीज पे जस्टिफाई करें। तो वहां से मैंने टोटली इस्लाम को
टाटा बाय बाय बोल, तो कभी उसके बाद मैंने फॉलो वो दूर की बात है, मैंने तो कभी देखा तक नहीं दूसरी बार कि इस्लाम है क्या। तो मैं फिर पूरी तरह एथियस्ट बन गई। मैंने कहा ठीक है, जन्नत हो जहन्नम है, मुझे जहन्नम जाना अच्छा पसंद है, लेकिन ये मैं नहीं करूंगी जो मेरे लाइक इंसानियत के खिलाफ जो चीज जा रहा है। तो अगर मोहम्मद, तो ठीक है, अगर वो ऐसा होता तो उस जमाने में ऐसा होता तो फिर कुरान आज क्यों है ना, फेंक के बाहर बाहर फेंक दो ना। फिर अगर वो लाइक कयामत तक, वो कहते हैं कि कयामत तक के लिए है, बिल्कुल, मतलब ये जब ना तक एक्चुअली इंसान रहते हैं। हिपोक्रेसी है। ये इन लोगों की वो हिपोक्रेसी है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये सिर्फ उस जमाने की बात थी, पुराने जमाने की बात है, और दूसरी तरफ फिर ये बोलते हैं कि नहीं भाई, कुरान जो है वो तो हमेशा हमेशा के लिए है। तो ये फिर तो दो तरफा बात हो गई है। वही तो सर प्रॉब्लम तो वही जी है ना। अगर आप कह रहे हो कि उस जमाने में ये चीजें हुआ करती थी, मैं डिसएग्री नहीं करूंगी, हाँ हुआ करती होंगी, तो फिर मोहम्मद तो बुराई को ठीक करने के लिए आया था ना। जी तो जी जब वो भी उससे घटिया हरकतें करेगा तो फिर हम ऐसे इंसान को कैसे मान सकते। तो मेरा हम्म मेरा पूरा का पूरा इस्लाम छोड़ने के पीछे एक ही कारण है, वो है आयशा और मोहम्मद की, मतलब जो सेक्सुअल एब्यूज उसके साथ हुआ है, मैरिज तो नहीं है वो, वहाँ वो ही मेरा जी लाइफ फर्स्ट एंड लास्ट था कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि तुम्हें छोड़ना है, किसी ने समझा दिया है कुछ है, बट मैंने जब उसके बारे में पता चला तो मैंने वही से इस्लाम छोड़ दिया। तब से अभी तक तो 10-12 साल हो गए होंगे, मैं पूरी तरह एथिस्ट हूँ। वो मैंने किसी को, घर वालों के सिवा किसी को, लाइक जो मेरे आसपास क्लोज जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पता है, बाकी किसी को ज्यादा मैं शेयर भी नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सेफ्टी का भी वो रीजन है ना। तो जी जी मैंने कभी किसी से ज्यादा शेयर भी नहीं करती हूँ। हाँ, जिनको मैं जानती हूँ, जो अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ तो हम अच्छे खासे, हम सारे मजहबों की ना माबैन एक कर देते हैं, हम आपस में वो डिस्कशन करते हैं कि किसके मजहब में कितने चीजें लाइक उस तरह के हैं, तो वो हम करते हैं, और घर वालों को भी मतलब पता है, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तो नहीं है। आई होप सो जी आगे भी ना हो। ये स्टोरी है कि मैंने इस्लाम कैसे छोड़ दिया। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप पूरा ओरिजिनल इंटरव्यू सुनना चाहते हैं तो नीचे पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करके मेरे इस बैकअप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सलामत रहें। इंसानियत हाफिज।